You will come to know कि in today's class we are talking about Aristotle's concept of tragedy and Aristotle's का जो theory of imitation है, दो चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं कि theory of imitation and Aristotle's concept of tragedy. Just I want to tell you कि we have taken Aristotle because when we go with the syllabus of GIC, we get that कि in that syllabus there is a portion which covers, yeah, which is about literary theorist, which is about theorist, yeah, which is about critics. So when we talk about Aristotle, when we talk about John Dryden, when we talk about Dr. Samuel Johnson, yeah, when you take William Wordsworth, S.T. Coleridge, and later on you will come to know Matthew Arnold and T.S. Eliot. These ट्रेडिशनल क्रिटिक्स यू कम टू नो, तो एक सेपरेट पोर्शन है जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज already you have gone when you are doing post graduation, especially in MA final year, you have heard these critics, you know about them. But in this class I will tell you how you have to uh, means how you have to write if the questions related to these critics are asked, that you have to give your answer within 50 words, within 150 words, within 300 words, then how you will be able to write. Then I'm going to take the first critic, and who is that? That is Aristotle. Then note down ki what type of questions will come. सबसे पहले जो मैं अरिस्टोटल को लेकर के बात करूंगा कि 300 वर्ड्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी अरिस्टोटल के बारे में बात किया जाता है तो रिगार्डिंग अरिस्टोटल आई वुड लाइक टू से कि 2 or 3 क्वेश्चंस which just cover कि which ultimately just tell कि uh, what Aristotle wants to say about tragedy, what was his opinion about tragedy, या what the theory has been given by Aristotle regarding tragedy, इसको लेकर के, और थियरी ऑफ इमिटेशन, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं आई थिंक कि in near future when you will appear to in mains examination GIC lectureship का, then you will there is a chance that you will find these 2 questions. तो एक तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा 300 वर्ड्स में, अरिस्टोटल का थियरी ऑफ इमिटेशन, थियरी ऑफ इमिटेशन और मीमेसिस, MIMESIS, अरिस्टोटल्स का थियरी ऑफ इमिटेशन और मीमेसिस, MIMESIS. So this is the first question which you have to get, which you should know कि within 300 words how you will be able, क्योंकि जो थियरी ऑफ इमिटेशन है, जो जो मिमेसिस है, you can't explain it within 50 words. If you want to write, you have to go either 150 words or 300 words, या more than 300 words, sometimes 500, sometimes 1000 words में, especially what I told you कि when यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन है व्हेन इट वाज इन रिटन मोड इन 2005 या बिफोर 2009, यू विल गेट कि ये जो क्वेश्चन था 1000 वर्ड्स में पूछा जाता था, वहां पर भी ये पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कवर करना है, व्हाट इज दैट थिंग, दैट इज कि अरिस्टोटल्स concept of imitation, a theory of imitation, that is also known as mimesis, MIMESIS. Mimesis is a Greek word and it refers to what it means, imitation. I will tell you later on ki what is imitation, what Aristotle wants to say, what was the opinion of Plato, what Plato wants to say, what the differences do you find regarding imitation between Plato and Aristotle, क्या differences है, you will come to know it about it later on. So एक क्वेश्चन आपको ये नोट करना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको 300 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स के लिए जो आपको नोट करना है, वो अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। Second important question you have to note down, that is the Aristotle's concept of tragedy. Third important question which you have to note down, जो तीसरा important question जो आपको नोट करना है, that is what, that is about what is catharsis.
कैथारसिस, समटाइम्स यू विल कम टू नो कि कैथारसिस को लेकर के 150 वर्ड्स या मोर देन 150 वर्ड्स में ये आंसर दिया जा सकता है। तो कैथारसिस हो गया, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी हो गया, और थियरी ऑफ इमिटेशन। ये तीन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि विच वेन एवर यू टॉक अबाउट अरिस्टोटल, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अरिस्टोटल एज अ क्रिटिक, या अरिस्टोटल्स व्यूज अबाउट ट्रेजिडी, what Aristotle says about imitation or mimesis, the concept of catharsis, ये जो भी चीजें हैं, ये कम से कम आपको 150 से 300 शब्द में कवर करना चाहिए, जहाँ पे ये बातें होनी चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? राइटिंग स्किल। अगर राइटिंग स्किल आपका बेहतरीन ढंग से डेवलप हो जाता है तो नो प्रॉब्लम एट, आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, यू विल बी एबल, इफ यू आर एबल टू राइट अ ब्यूटीफुल आंसर, सेलियन सर्टेनली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। एंड उसके अलावा आपको फिर ये ध्यान में रखना है कि 50 वर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चन अरिस्टोटल से रिलेटेड तैयार करने हैं। अरिस्टोटल से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन 50 वर्ड्स में आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने ट्रेजिडी के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए हुए हैं। उनमें से एक वर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो, TRAGIC, ट्रेजिक हीरो। दूसरा वर्ड उन्होंने जो यूज किया है ट्रेजिक हीरो के अलावा, व्हाट इज प्लॉट। प्लॉट को लेकर के आपको बात करना पड़ेगा, प्लॉट। तीसरा जो उन्होंने यूज किया है या जो हमें समझने की जरूरत है, उन्होंने ये बात बताई है कि एक थ्री थ्री यूनिटीज हो गया, सॉरी थ्री यूनिटीज regarding time, place and action within 50 words. You have to decide it, you have to write it, you have to write it within 50 words, you have to write it, three unities. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि 50 वर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से एक है अरिस्टोटल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी अरिस्टोटल्स का क्या नाम है आपका, प्लॉट से रिलेटेड होगा, थ्री यूनिटीज से रिलेटेड होगा, और अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो उनका क्या रहा है। दूसरा चीज जो है, जो नेक्स्ट वर्ड है, कुछ उन्होंने वर्ड्स यूज किए जैसे हैमार्सिया, HAMARTIA, हैमार्सिया, HAMARTIA। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूब्रिस, HUBRIS, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस, HUBRIS। नेक्स्ट वर्ड है पेरीपीटिया, PERIPETIA, पेरीपीटिया। नेक्स्ट वर्ड है एनाग्नोरिसिस, ANAGNORISIS, एनाग्नोरिसिस, ANAGNORISIS, ANAGNORISIS, एनाग्नोरिसिस। आप यहाँ पे एक बार कैथारसिस दोबारा भी लिख लीजिएगा, वी हैव टू डिस्कस कैथारसिस विद इन 50 वर्ड्स आल्सो, कैथारसिस को। एक वर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मिमेसिस भी यहाँ पे लिख लीजिए कि मिमेसिस इज अ ग्रीक वर्ड रिफर्स टू इमिटेशन। मिमेसिस, MIMESIS। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वेन एवर यू टॉक अबाउट अरिस्टोटल या वेन एवर यू टेक एनी क्रिटिक, always you have to keep in your mind कि what type of questions can be asked. Number one point, if any question is going to be asked तो उसको आपको तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। लॉन्ग आंसर 300 वर्ड्स में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर उसके बाद आपके जो है 150 वर्ड्स में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर किसी क्रिटिक ने कोई टर्म यूज किया हुआ है जो लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा बनता है, क्योंकि अगर वह बात करेगा तो कोई ना कोई टर्म जरूर आएगा वहां पे, अगर कोई टर्म वह यूज किए हुए हैं तो उसको आप ये मान लीजिए वह 50 वर्ड्स में ही पूछा जाएगा।
इंशाल्लाह ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही को 50 वर्ड्स में ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमें 50 वर्ड्स को बहुत अच्छे ढंग से उसको वो करना है, क्योंकि उसमें आपको उसको केवल एक मतलब 2 लाइन में मैक्सिमम जो है, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना। अगर उन्होंने 50 वर्ड्स कहा तो जरूरी नहीं कि पूरा नाप के 50 वर्ड्स में ही लिखना है। यू कैन गिव योर आंसर विद इन 20 वर्ड्स, within 10 words also, but not more than 50 words. You don't have to exceed the limit. हमें लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, तो विद इन 50 वर्ड्स ये चीज उसमें वहां पे वो करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो 50 वर्ड्स में ही, और कोई भी चीज जो आपको बात करना है उस पार्टिकुलर चीज को विद एग्जाम्पल बात करना, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यू आर देयर नॉट टू टेल अ स्टोरी, you are there not to tell a story. Giving answer means that you have to give your idea, means you have to give your thought in the light of any text, in the light of any text. आपको जो भी बात कहनी है वहां पे विद एग्जाम्पल देना है। आपको केवल इतना ही नहीं कह देना है कि कि अरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजिडी का ये डिफिनीशन है। नो, नॉट एट ऑल। उस डिफिनीशन को आपको प्रूव करने के लिए ये जरूर करना होगा एक दो उदाहरण। जब भी उसकी बात चलेगी तो सोफोक्लिस का एंटीगॉन जरूर आपके माइंड में होना चाहिए कि इस तरह की चीजें होती है। तो व्हाट आई एम सेइंग यू कि यू आर देयर फॉर व्हाट, यू आर देयर टू गिव अ लॉजिकल, if I use the word ki a very scientific and means a very clear answer you have to give there। वहां पे आपको लॉजिकल, साइंटिफिक और बहुत ही क्लियर आंसर आपको देना है। वहां पे आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर देयर टू टेल अ फेरी टेल, नो, नॉट एट ऑल। दैट शुड बी इंफॉर्मेटिव, दैट शुड बी आर्गुमेंटेटिव। वह इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए। गिव मी ओनली 1 मिनट, गिव मी। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो हमारा जो क्वेश्चन है वह कैसे होना चाहिए, वह इंफॉर्मेटिव हो, वह आर्गुमेंटेटिव हो, और उसमें फैक्ट नजर आना चाहिए। विद एग्जांपल यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग। उसमें आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी खुद की लैंग्वेज एक डेवलप करनी पड़ेगी। और हर चीज का जब आप लैंग्वेज को डेवलप करेंगे, पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, बट यू हैव टू एलाबोरेट दैट पॉइंट। और हर पॉइंट का एक सीक्वेंस होना चाहिए, हर पॉइंट का एक सीक्वेंस होना चाहिए। आई विल गिव यू सम नोट्स आल्सो, आई विल गिव यू सम नोट्स। तो यू विल कम टू नो कि एक उसमें जो है वो होना चाहिए। तो एक उसका सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस में अगर मैं ये बात करता हूँ कि यू हैव टू टेल व्हाट, यू हैव टू टेल द कॉन्सेप्ट, अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज ट्रेजिडी। और इस ट्रेजिडी को डिफाइन करने के लिए आपको अरिस्टोटल की डिफिनीशन याद होनी चाहिए। आपको अरिस्टोटल की डिफिनीशन याद होनी चाहिए कि अरिस्टोटल की नजर में ट्रेजिडी क्या है, उन्होंने दिया हुआ है। तब आपको ये बताने की कोशिश करना है कि जो उन्होंने डिफिनीशन दिया है कि ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शन ऑफ द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड या ह्यूमन बींग्स, तमाम वर्ड उसमें पोइटिक लैंग्वेज का फिर यूज होना चाहिए। और ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। उसके बाद आपको ये जरूर बताना है कि उन्होंने जो ट्रेजिडी कहा तो ट्रेजिडी के कौन कौन से एलिमेंट के बारे में उन्होंने बात किया हुआ है। फिर वही बात आएगी, ट्रेजिडी के एलिमेंट में उन्होंने किसके बारे में बात किया है, ट्रेजिक हीरो के बारे में बात किया है। ट्रेजिडी के एलिमेंट में उन्होंने कहा है पोइटिक लैंग्वेज का यूज किया जाना है। उन्होंने कहा कि उसमें कॉमिक एक्शन का मिंगलिंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा उसमें 3 यूनिटीज होनी चाहिए। उन्होंने और भी चीजें जैसे हाइमार्सिया की बात हुई है, उसमें ट्रेजिक प्लग की बात हुई है, हाइमार्सिया ट्रेजिक प्लग, पेरीपीटिया की बात हुई है, कैथारसिस की बात हुई है, एनाग्नोरिसिस की बात हुई है। तो जब आप इस चीज को 300 वर्ड्स में लिखेंगे तो जो मैं अभी 50 वर्ड्स में बता रहा था ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। whenever Aristotle talks about कि Aristotle's concept of tragedy, तो always remember in your mind कि first you have to give the definition। पहले आपको उसकी definition देनी पड़ेगी। first you have to give the definition, after giving the definition you have to explain one by one।
अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी ये है, उन्होंने ट्रेजिडी को ले ये कर ये बातें की हैं रिगार्डिंग ट्रेजिडी, ये सारी चीजें नजर आती हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना, इतना बात करने के बाद आपको उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर अप्लाइंग यू नीड एनी टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एंटीगॉन होना चाहिए। आपको पूरा कहानी एंटीगॉन की नहीं बताना, आपको केवल इतना ही मेंशन करना है कि ऑल दीज फीचर्स वी फाइंड in means in the play Antigone, written by whom, written by सोफोक्लिस। आप वहां पे इस लाइन को अगर कर देंगे, इट मीन्स कि आपको ये पता है कि जो सोफोक्लिस है वो ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट रहे हैं और उनके प्ले के बारे में आपको पता है। तो वेन एवर यू गो, तो ये चीजें आपको बताना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे लोग गलती कहाँ करेंगे जब इस तरह के आंसर को, व्हेन दे आर गोइंग टू राइट सच अ टाइप ऑफ आंसर, तो वेयर दे विल कमिट मिस्टेक। यहाँ पर वे जो है कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देंगे कि शेक्सपियर की ट्रेजिडी में ये नहीं पाया जाता, शेक्सपियर की ट्रेजिडी में वो नहीं पाया जाता। हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि आई एम जस्ट आस्किंग ओनली अबाउट अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजिडी आर द फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। आप ये लाइन बाद में जरूर लिख सकते हैं कि इन एलिजाबेथन एज we find a new type of tragedy written by William Shakespeare, and he discarded some principles of tragedy given by Aristotle, and he brought some new points. Yeah, he used some new points in writing tragedy. ये बात आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि वहां पे शेक्सपियर की ट्रेजिडी को एक्सप्लेन करने लगिए, तो ये वहां की ब्यूटी नहीं होगी। आप ये जरूर कर सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि आपको ये भी पता है कि वहां तक भी आप जा रहे हैं। तो वेन एवर, यह एक देखिए, जो भी एक आंसर आप लिख रहे हैं, दैट पार्टिकुलर आंसर इज अ डिस्कोर्स एट अ पार्टिकुलर टॉपिक। एक पार्टिकुलर टॉपिक पर वह एक डिस्कोर्स है, और जब कहीं पे डिस्कोर्स होता है तो उस डिस्कोर्स में तीन चीजें ध्यान में रखी जाती है कि यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, आपको कुछ चीजें स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि व्हाट यू हैव टू गिव, जो बातें आप उस टॉपिक पे कर रहे हैं मिडिल में आपको क्या रखना है, फिर लास्ट में आपको क्या रखना है, एक चीज। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही आप देखिएगा अरिस्टोटल कहते हैं कि जो प्लॉट होता है, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी, लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। एक गुड प्लॉट का एक अपना शुरुआत होता है, मिडिल होता है और एंड होता है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि वेन एवर यू फाइंड एनी टाइप ऑफ प्लॉट को लेकर के अगर आप बात करते हैं, तो हमेशा उसमें आप ये देखेंगे कि शुरू में कुछ बताया जाएगा, जो शुरू में बताया जा रहा है उसका लिंक जो है बीच वाले से होगा, जो बीच में बताया गया उसका लिंक कंक्लूजन या लास्ट पोर्शन से होगा। सो जो घटना है, जो स्टोरी है, वह स्टोरी तो घटित हो गई, लेकिन उस घटित हुई स्टोरी को आपको लोगों के सामने बताना है। यू हैव टू टेल टू अदर, when you want to tell to other, you have to tell in a systematic way, आपको उसको सिस्टमेटिक वे में बताना है। ऐसे ही when you are going to write the answer, तो आंसर आप किसका लिखने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ अ पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रॉब्लम है। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का मतलब प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का मतलब कि किसी टॉपिक पर आपकी हम राय जानना चाहते हैं, आपका हम ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो अगर जो है किसी टॉपिक पर चार लोगों को लाके बैठा दिया जाए कि दिस इज अ प्रॉब्लम, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, यू हैव टू टेल कि हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार लोग अलग अलग ढंग से अपना अपना बयान देंगे, अपने अपनी बात को रखेंगे। बट रिमेंबर दैट कि चारों लोगों का लगभग कंटेंट एक जैसा होगा, बट वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होगा। तो जो आप पढ़े हुए हैं वही जितने लोग यहाँ पे, आई थिंक देर आर 22 पीपल, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि these 22 people are attending my lecture, but when I say that you have to write something about my lecture, you will come to know कि they have their own vocab, they have their own language, they have their own way of expression. When they write, you will find कि कुछ ना कुछ differences आएगा, कि किसी ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बताया कि क्लास इतने बजे से शुरू हुई, ये बताया गया, इस टॉपिक को लिया गया, इस चीज को लिया गया। ऐसे ही when you are writing या giving answer,
it is expected that ki the particular problem which lies before you have to explain that thing in a very systematic way. और हर चीज का लिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीजें पहले आनी चाहिए वो ना, वो जो है लास्ट में आ रही है। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका यही होता है कि यू हैव टू लिंक ईच एंड एवरी पॉइंट। if you don't link, then that will be what, that will be in fragmented way, and fragmented answer is never liked by anyone, उसको कोई भी लाइक नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी आता है, तो उस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी में आपको सबसे पहले व्हाट इज ट्रेजिडी, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिडी, आपको ये चीज लेना पड़ेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी। देन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what type of concept means what the elements do you find, कि what the elements have been given, कि कौन सा एलिमेंट्स दिया गया है अरिस्टोटल के द्वारा। तो वो जो एलिमेंट्स है, उस पार्टिकुलर एलिमेंट्स में यू विल कम टू नो कि तमाम तरह के जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, उसका पोएटिक लैंग्वेज है, या ट्रेज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो है, प्लॉट है, या वट एवर द वर्ड्स दे ही हैज यूज, उन सबको आपको क्या करना, पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक ढंग से यू हैव टू एक्सप्लेन। बट रिमेंबर दैट कि व्हेन यू स्टार्ट एनी न्यू पॉइंट, you have to change the passage. Changing of the passage means ki you want to say something here new point. Changing of the passage does not mean ki that you are going to change your topic. Topic is same. Topic is about what? Topic is about, that is what, that is the Aristotle concept of tragedy. But what you have to do, you have to do ki you have to do one thing. And what you have to do, you have to do ki you have to write anything in a very systematic order, in a very systematic manner. And when you write anything, any new point, when you are going to write, you have to change your passage. If there are some terms, then you have to highlight the term. If you are using the word hamartia, you are using the word hubris, you are using the word peripetia, you are using the word pity and fear, so these words should be highlighted in your answer. Highlighting does not mean that you are going to underline, because underline का एक अपना मार्क होता है कि underline वहां पे किया जाता है when there is the, if that is the name of the book, अगर वह बुक का नाम होता तभी अंडरलाइन किया जाता है। और कंप्यूटर में इसीलिए जब उसको किया जाता है तो इटैलिक कर दिया जाता है। एंड ऑलवेज यू विल कम टू नो कि जो भी चैप्टर का नाम या पोयम का नाम रखा जाता है, दैट इज पुट इन डबल इन्वर्टेड कामा, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। एंड बट व्हेन यू फाइंड दिस टाइप ऑफ वर्ड, तो यू हैव टू यूज अनदर पेन, ब्लैक पेन या एनी अदर थिंग बाय व्हिच यू कैन जस्ट हाईलाइट की आप इस पे। Remember that when you talk about hamartia, it means that you have to change your passage. When you talk about when you are talking about catharsis, just change the passage. It means that you are giving some new point. You don't have to mingle each and everything. एंड डोंट यूज हेडिंग की इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद 300 वर्ड्स में हेडिंग का कोई नहीं, आप 1000 में नहीं लिखने जा रहे, 2000 वर्ड्स में, 3000 वर्ड्स में नहीं लिखने जा रहे। यू हैव ओनली टू राइट 300 वर्ड। 300 वर्ड्स का मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि 3 पेज में, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 300 वर्ड्स उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस तरह की चीजें करनी है, या इस पैटर्न को फॉलो करना है। नाउ if you have any confusion, so you can just ask me, because I believe that the session should be interactive. What are the problem you have, what are the confusion you have, you can ask regarding this particular point which I just shared, which I just talked with you. Yeah, this is the, yeah, good evening Munishwar bhai, good evening. Yeah, yeah. Yeah, it's going to be related, means here in this today's session, I'm going to take it from the perspective of mains examination, ki how you have to develop writing skill whenever you are going to give the answer of any question. But it does not mean ki that I'm going to explain only the thing which is related to mains examination. If I explain the thing, yeah, if I explain, yeah, yeah.
that will be related not only literary theorist and critic, that will be related the whole syllabus, whatever the writers and their works they have described there, they mentioned there, it will cover the whole syllabus. It will cover the whole, yeah, it will cover the whole syllabus. I think कि composition or grammar, if they ask, so they can just ask to write any letter, or they can give you some comprehensions. All these things they can give you. Some passage, some comprehensive passage, or they can give you such a type of thing कि write to write any letter. All these things they can give. But when you talk about literature, it means that कि literature means they will cover history of English literature, they will cover literary terms, they will cover some literary movements, and they will also ask some questions related to important related to author and their important work. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, undoubtedly. Yeah, undoubtedly we are doing it, because I got even this suggestion was also given by Sonali madam and so many aspirants who are here. They have given this suggestion कि first I would like to go such a type of writers जो कि है वहाँ पर है, और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का था, तो दिस इज व्हाई आई हैव टेकन इट, दिस इज व्हाई आई हैव टेकन इट। जी 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 जी। Okay. Any other suggestion or any other query related to this topic? Okay. 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 Okay, Dinesh ji. Then I will take what? I will take another topic. If this question comes, then what you have to do? Remember that if the question comes कि Aristotle's concept of Aristotle's का जो concept है related to imitation या mimesis. When I talk about mimesis, yeah, when I talk about theory of imitation, I just want to tell you कि that's a Greek word and it means imitation. But जो concept of imitation है या जो concept of mimesis है, it begins with the coming of, it begins ultimately about it before Aristotle. Plato has just expressed his views. So what has been said by Plato and how Aristotle discarded it. आपको यहाँ पे ये बात जरूर करना पड़ेगा कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन मिमेसिस, कि मिमेसिस इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस इमिटेशन। एंड रिगार्डिंग लिटरेचर इसके बारे में सबसे पहली बार जो व्यूज आया है वो कौन दिया हुआ था? अरिस्टोटल, प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने ये कहा था कि पोएट और पोइट्री को लेके उन्होंने कहा था स्पेशली कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। सो रिमेंबर दैट somewhere you find twice removed from reality, somewhere you find is thrice removed from reality. So when you go theory of imitation, you have to talk what is imitation, then you have to talk about Plato, then you have to talk ki how Aristotle discards it. And this theory of imitation you find in a in the famous work of Aristotle, that is poetics, poetics में उन्होंने कहा। Then Aristotle says that कि the duty of a literary person या any poet or any writer does not imitate but create. So there are the two words, one is the creation and second is the imitation. Here you will find the distinction कि in what way he is going to discard या he is going to reject the particular
means definition given by Plato. So Plato says that ki imitation means copying. Plato says this ki imitation means copying, but Aristotle says ki no. Literary person, any poet or dramatist or novelist, whatever the word you would like to use, they don't copying anything. They don't imitate, but they create, and they create because they have the natural attribute of the creativity that has been given by Almighty God. That is the imaginative part. So through their imagination, yeah, through this power, they bring some modification whatever they imitate. They imitate any object, जो कुछ भी चीजें हैं, whatever you write, then there is a object before you. Any object is before you, you imitate that object, but imitation does not mean कि that is a copying. You find that they bring what they bring, some modification, they bring some changes, they bring a lot of they change the whole structure, that is the prenatal existence of any object. अगर आपको याद होगा यहाँ पे, यू कैन जस्ट यूज द वर्ड कि कॉलेज ने इमेजिनेशन को लेके क्या कहा, इट डिसॉल्व, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेयर. तो यू विल कम टू नो कि व्हाट द ऑब्जेक्ट इज इमिटेटेड बाय अरिस्टोटल, सॉरी, बाय एनी पोएट इन द व्यू ऑफ अरिस्टोटल, कि it is dissolves, diffuses and disappears. It's not the word of Aristotle, but you will come to know कि to some extent ऐसा ही देखने को मिलेगा. It dissolves, diffuses and dissipates, and the prenatal exists. The pre-existence of any object is going to be what? It is going to be पूरा खत्म कर दिया जाता है. तब वहां पे क्या होता है? वी फाइंड अनदर प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी. सो क्रिएटिविटी इज व्हाट? क्रिएटिविटी डज नॉट मीन कॉपी. क्रिएटिविटी मीन्स इट्स द आर्ट, and this creativity brings you what? This creativity brings delight and pleasure. तो इसका 3 सेक्शन होगा. इमिटेशन क्या है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्रिएशन क्या है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, और इसको लेकर के दो लोगों को ओपिनियन देना पड़ेगा. अरिस्टोटल को ओपिनियन देना पड़ेगा, प्लेटो का ओपिनियन देना पड़ेगा. फिर ये बताना पड़ेगा कि जब क्रिएशन होता है तो उससे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इफ यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग, राइटिंग एनीथिंग, या इफ यू आर जस्ट चेंजिंग द मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर, देन व्हाट इज द अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. देन यू विल कम टू नो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. डिलाइट होता है या प्लेजर होता है. एंड द सेकेंड पोर्शन या सेकेंडरी जो होगा, दैट विल बी अ डिडक्टिक एलिमेंट होगा. यू विल गेट सम लेसन, सम मॉरल एजुकेशन, दैट इज अनदर थिंग. बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग डिलाइट एंड प्लेजर. तो इस चीज को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या इस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा. So I hope कि that today you got कि if the question comes that is related to Aristotle, how would you like to explain? uh, किसी को कुछ और कहना है? Do you want to say anything? किसी को कोई चीज या whenever remember that कि whenever I take any topic, especially if I have taken Aristotle, then surely and certainly I will tell you कि what type of objective question, means what type of question will be asked in prelim and what type of questions will be asked in mains. जैसे अगर जब भी मैंने आपको बताया कि पोएटिक्स उनका वर्क है, तो एक ये हमें पता होना चाहिए पोएटिक्स किसका वर्क है, अरिस्टोटल का है. जब मैंने आपको ये बताया कि रिपब्लिक जो है किसका वर्क है, वो प्लेटो का वर्क है, तो ये ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव में जो और पूछा जाएगा, हाइमार्सिया क्या है, कैथारसिस क्या है, परगेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन क्या है, या पेरिपीटिया क्या है, ह्यूब्रिस के जितना भी टर्म मैंने बताया, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, 50 वर्ड्स में भी पूछा जाएगा. इसका मतलब वी आर गोइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स. ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर एक चीज को लिया जा रहा है, सारी चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें, सारी चीजों. जी सोनाली जी. नहीं, वो तो होगा यार. इवन आई विल प्रोवाइड आल्सो, मैं भी हर टॉपिक से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे भी हो जाएगा जी. जी 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 जी. So I think now I have to complete this session. I will meet you tomorrow.
और आप जो है माइंड मेकअप कर लिए कि इसके बाद हम लोगों को जो भी होगा पूरा किस पे बात करनी, अरिस्टोटल। मैंने केवल ये समझाने के लिए आपको लिया था, मैंने कोई चीज एक्सप्लेन नहीं किया। आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज मिमेसिस एंड हाउ यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, आई विल एक्सप्लेन। किसी को। जी। 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 हाँ। नहीं, इसमें नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है। नो पॉसिबल। हम्म। जी। जी। नहीं, ये हाँ, ये भी रिकॉर्डेड हुआ, यूट्यूब पे भी पड़ा रहेगा, टीचमेंट पर भी पड़ा रहेगा, दोनों जगह रहेगा। आज मैंने टीचमेंट पे सारा डाल दिया, जो पहले जो आपने कहा था जो चीजें नहीं पहुंची थी। आप देखिए टीजीटी पीजीटी वाली क्लास में सारे वीडियोस का लिंक मैंने अपलोड कर दिया वहां पर। हाँ। पूरा मैं। या ओके ओके पूनम जी। ठीक है, ओके। देन वी विल मीट टुमारो इन मॉर्निंग। या दिनेश जी। गुड नाइट, गुड नाइट।